पहले पेपर 7 चलें ठीक है. Chagas disease and congenital megacolon affect which layer of GIT? Serosa, mucosa, submucosa, muscularis, externa. Externa. Delay and integration of all senses in basal ganglia, DCML, cerebellum, thalamus. Isoniazing radiation causes injury by free radical formation, proton genes, virus, superinfection. Therapeutic use of calcitonin is in hyperparathyroidism, Paget disease, osteoporosis, rickets, osteopetrosis. After vasectomy, seminal fluid will contain seminal and prostatic fluid. Prostatic fluid sperm count decrease. Per boiling of fats, preserve which vitamin? B1, B2, B3, B4, B6. B1. Which antibiotic affect with the neuromuscular transmission? Sulfadizine, cephalosporin, penicillin, gentamicin. Gentamicin. Respiratory rate in pregnancy increases due to which hormone? Estrogen, progesterone, oxytocin, HCG. Epstein-Barr virus causes which tumor? Infectious mononucleosis, Burkitt lymphoma, hepatocellular carcinoma, typhoid. Burkitt lymphoma. In post-streptococcal glomerulonephritis, finding is linear deposition, mesangial proliferation, subepithelial deposit, alveolar damage. ठीक है. A primary site of DVT is pulmonary artery vein, abdominal vein, DVT. DVT. CML में ट्रांसलोकेशन कौन सी होती है? CML के अंदर ट्रांसलोकेशन 922. Therapeutic window of drug indicates the range of potency, effective blood concentration, efficacy, effective dose. Complete mole has raised alpha fetoprotein, raised HCG, low HCG. ठीक है. Motor apraxia is due to lesion in prefrontal cortex, occipital lobe, cerebellum, DCML. Right shift of hemoglobin oxygen curve in HbF, high pH, decrease in temperature, hyperthyroidism, increase in pulmonary capillaries. Hyperthyroidism. मेटाबॉलिक एसिडोसिस में मैकेनिज्म क्या होता है? लॉस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, गेन ऑफ बाइकार्बोनेट्स, गेन ऑफ पीएच, लॉस ऑफ बाइकार्बोनेट्स. Role of endothelium in hemostasis is plasminogen activator inhibitor, prostacyclin, fibrinogen, mechanical barrier. Mechanism of action of clopidogrel is ADP antagonist, thromboxane A2 inhibitor, factor 10A activator, factor 11A inhibitor. ADP antagonist होता है ये. Pseudomembranous colitis is caused by which organism? Staph aureus, Streptococcus, Clostridium perfringens, Klebsiella, Clostridium difficile. Regarding Mycobacterium leprae, which is true, extracellular होता है या intracellular acid fast organism, opasties या photophobia. Mechanism of SLE is autoimmune graft versus host disease, cytokine mediated delayed hypersensitivity. Conjunctivitis in the baby, mother will have chlamydia, HIV, rubella, mumps. Most common skin cancer in HIV and AIDS patient is Kaposi sarcoma, Hodgkin lymphoma, basal cell carcinoma, squamous cell multiple myeloma. So Jordan syndrome marker is anti-double stranded A, anti-double stranded DNA, anti-RNA, ANA, HeLa, B27. Down syndrome is trisomy 21, 13, monosomy, polysomy. अच्छा इसमें हमने क्या किया था? इसमें ओवर एक्सप्रेशन ऑफ जीन होता है या डाउन एक्सप्रेशन ऑफ जीन होता है? ओवर एक्सप्रेशन ऑफ जीन. Tractus solitaris receive afferent from 8th nerve, 7th nerve, 9th या 10th? 7th nerve. A patient with loss of touch sensation on the face while pain and temperature
being intact, which nucleus lesion is involved? Primary sensory nucleus, spinal nucleus, mesencephalic nucleus, thalamic nucleus, dorsal nucleus of the vagus. ठीक है. Factor needed for coenzyme A is which one of the following? Biotin, pantothenic acid, biotin, folic acid, B2. स्पाइनल नहीं, इसका करेक्ट आंसर अल्फा ही है. उसकी न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं ना, तो लॉस ऑफ टच सेंसेशन फेस पे है, तो सेंसरी न्यूक्लियस ही होगा ना उसका, क्योंकि पेन और टेम्परेचर. लॉस ऑफ टच सेंसेशन ऑन द फेस, टच सेंसेशन लॉस हुई नहीं, यानी कि सेंसरी जो है वो लॉस हुआ है. ठीक है, तो पेन और टेम्परेचर तो इंटैक्ट है. अगर पेन और टेम्परेचर में होता देन फिर हम वो चूज़ करते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड हेमी सेक्शन होता है. ठीक है, सिर्फ टच जो है वो सेंसरी स्टिमुलस है ना, तो प्राइमरी सेंसरी न्यूक्लियस जो है उसके अंदर अगर लीजन आए तो टच जो है सेंसेशन फेस पे लॉस हो जाएगी. ठीक है, अगर पेन और टेम्परेचर कॉन्ट्रालैटरल साइड के ऊपर बिलो द लेवल ऑफ लीजन आए तब हम कहते हैं कि ये हेमी सेक्शन हुआ है राइट साइड का, और कॉन्ट्रालैटरल लेफ्ट साइड पे पेन और टेम्परेचर लॉस हो गया. ठीक है, ये एमसीक्यूज क्लियर है अब आपको 5 वाला? चलिए ठीक है, ये भी हो गया. In strenuous exercise, what occur? Decrease total peripheral resistance, decrease carbon monoxide, increase TPR, decrease venous return. ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेपर स्टार्ट करते हैं. पेपर 8 4 पेज नंबर 492, MCQs नंबर 1. फर्स्ट MCQ से ए पेशेंट हैज़ जॉन्डिस. अच्छा ठीक है, और अल्कोहलिक के अंदर हमने बात की थी कि ALT जो है वो रेज्ड होता है, और जो वायरल होता है उसके अंदर ALT रेज्ड होता है या AST रेज्ड होता है? ALT रेज्ड होता है. ठीक है, अब इसमें उन्होंने बात की है कि जब भी मैलरी बॉडीज आ जाएंगे तो आप क्या चूज करेंगे? अल्कोहलिक हेपेटाइटिस. ठीक है, ऑब्स्ट्रक्टिव के अंदर क्या आएगा? ALP एंड GGT रेज्ड आएंगे. प्रेग्नेंट के अंदर भी GGT रेज्ड आता है. ठीक है, सेकेंड MCQ से कि फ्रेनिक नर्व का अगर एवल्जन हो जाए उसके ओरिजिन के ऊपर तो क्या होगा? हेमी डायफ्राम की पैरालिसिस हो जाएगी. ठीक है, थर्ड कहते हैं जेनेटिक म्यूटेशन इनहेरिटेड किसके थ्रू होती है? ऑटोसोमल डोमिनेंट में. 4 है डिफरेंस बिटवीन मैलिग्नेंट एंड नॉर्मल सेल सच दैट मैलिग्नेंट सेल रिपेयर द शॉर्टनिंग ऑफ क्रोमोसोम. जब भी मैलिग्नेंट सेल क्रोमोसोम को शॉर्ट करते हैं तो वो डिवाइड करके कौन सा एंजाइम डिवाइड करा होता है? टीलोमेरेज. ठीक है, 5 इंसुलिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? टायरोसिन काइनेज पाथवे के थ्रू. ठीक है, इसोफेगस की हिस्टोलॉजी के अंदर क्या आता है? स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम थ्रू आउट द ठीक है, इसोफेगस थ्रू आउट मतलब सारी इसोफेगस के अंदर उसकी एपिथेलियम सेम रहती है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम रहती है. 7 MCQs है ए पेशेंट विद लोकलाइज्ड सर्कमफ्रेंशियल सब एंडोथेलियल लेटरल वॉल का इंफाक्ट. तो लेटरल वॉल को कौन सप्लाई करती है? लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स कोरोनरी आर्टरी. इंफीरियर MI में राइट कोरोनरी आर्टरी होती है, और एंटीरियर के अंदर लाडा होती है जो V1 और V6 को इन्वॉल्व करती है. लिपोफिलिक हार्मोन किसके थ्रू एक्ट कर रहा होता है? मैसेंजर RNA के थ्रू. ए बॉय वाज टॉकिंग इन द क्लासरूम, टीचर गॉट इरिटेटेड, आस्क्ड हिम टू लोअर द पिच ऑफ वॉइस. मसल कौन से रिस्पॉन्सिबल होते हैं पिच को कम करने के लिए? कौन से होते हैं? थायरोरेटिनॉइड. और वोकल कॉर्ड को टेंस कौन करते हैं? बीटा ऑप्शन क्रिकोथायराइड. और एबडक्टर कौन से होते हैं? एबडक्टर ऑफ वोकल कॉर्ड जो पीछे प्रेजेंट होते हैं वो एबडक्ट करके उसे खींच के रखते हैं. पोस्टीरियर क्रिकोरेटिनॉइड. वेरी गुड. 10 ड्यूरिंग 24 आवर की ADH के अंदर डिहाइड्रेशन थी तो ADH रिलीज हुआ, वो क्या करेगा? एक मिनट. पोस्टीरियर में है कि वो एबडक्टर होता है वोकल कॉर्ड का. पोस्टीरियर किया था आप लोगों ने कि पिच को कम कौन कर रहा होता है? अच्छा, वैसे जो पोस्टीरियर क्रिकोरेटिनॉइड होता है ना वो एबडक्टर होता है वोकल कॉर्ड का, और जो पिच को वैसे कम कर रहा होता है ना वो थायरोरेटिनॉइड ही होता है. ठीक है, चलें आप ना इसे ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, फिर मैं रफ़ी के अंदर ये सारा ना एग्जैक्ट टेबल बना हुआ है, या आप खुद भी चाहे रफ़ी से क्लियर कर सकते हैं. ठीक है, तो पिच को जो कम करता है ना वो थायरोरेटिनॉइड ही होता है, और जो पोस्टीरियर क्रिकोरेटिनॉइड होता है ना वो पीछे होता है और वो वोकल कॉर्ड को एबडक्ट करके रखता है. ठीक है, 24 आवर के डिहाइड्रेशन के अंदर क्या होता है?
कोलेक्टिंग डक्ट की परमेबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। 10 MCQs कहते हैं कि प्लाज्मा प्रोटीन फिल्टर्ड इन मिनिट अमाउंट फ्रॉम द किडनी बिकॉज फिल्ट्रेशन इज अपोज्ड बाय मेम्ब्रेन ड्यू टू, क्यों? क्योंकि उसके ऊपर नेगेटिवली चार्ज होते हैं, प्रोटियोग्लाइकेन होते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर। 12 कहते हैं कि 70-year-old मैन विद रीनल ट्रांसप्लांट 2 years बैक, जब भी ट्रांसप्लांट के बाद, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड निमोनिया नॉट रिस्पॉन्डिंग टू एंटीबायोटिक और ब्रोंको एल्वुलर लिवाज आए और बोर्ड शेप सिस्ट आए, तो वो कौन सा होता है? निमोसिस्टिक जीरोवर्स। विच बैक्टीरिया सेल वॉल किसके अंदर नहीं होती? माइकोप्लाज्मा एंड यूरिया प्लाज्मा। थियोफाइलिन कॉजेज मोर इफेक्ट इन चिल्ड्रन, क्यों? क्योंकि उसमें एक्सक्रीशन उसकी कम होती है, तो बच्चों के अंदर ये हमें मतलब इसकी डोज कम देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, ठीक है। मतलब डिफरेंट एक्शन होता है बच्चों के अंदर इसका, ठीक है, क्योंकि डिक्रीज होती है इसकी एक्सक्रीशन, तो इसका इफेक्ट ज़्यादा आएगा बच्चों में। सिमेटेड इन गिवन बिफोर सर्जरी क्या करवाता है? गैस्ट्रिक एसिड की वॉल्यूम को डिक्रीज करवा देता है। H2 रिसेप्टर ब्लॉकर होता है ये। जब भी डायबिटिक पेशेंट के अंदर ग्रीनिश डिस्चार्ज आता है तो वो किसका आता है? सूडोमोनास का आता है। और सूडोमोनास ग्रीनिश डिस्चार्ज किसके थ्रू प्रोड्यूस करता है? इम्यूनिटी का क्वेश्चन है, हमने कल भी किया था। क्या रिलीज करता है वो? ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर, एक्सोटॉक्सिन भी रिलीज कर रहा होता है, ठीक है। और साथ फीवर वगैरह भी क्या कॉज करवाता है? ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर के थ्रू सारा इन्फेक्शन कॉज करता है। पेल इनफाक्ट के अंदर किस में आता है? MI के अंदर हार्ट में क्या होती है? कोआगुलेटिव नेक्रोसिस होती है। क्रोनिक विलस सैम्पलिंग कितने वीक्स में करते हैं? 11 to 12 वीक्स, ठीक है। और एमनियोसेंटेसिस कब करते हैं? 15 वीक्स पे। कोडोसेंटेसिस करते हैं 20 वीक्स पे। रेड ब्लड सेल सिंथेसाइज ATP फ्रॉम ग्लूकोज। ग्लाइकोलाइसिस एंजाइम कौन से प्रेजेंट होते हैं? साइटोप्लाज्म ऑफ रेड ब्लड सेल्स पे। अच्छा, ग्रोथ हार्मोन के रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ग्रोथ हार्मोन के रिसेप्टर्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे नहीं होते, वो तो जो न्यूक्लियस पे होते हैं ना, वो आई थिंक जो थायराइड हार्मोन होता है ना उसके होते हैं न्यूक्लियस पे, ठीक है। तो ग्रोथ हार्मोन के कहाँ होते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे होते हैं, ठीक है। इंटर माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन की सिंथेसिस कौन करवाता है? न्यूक्लियाई करवाता है, ठीक है। और बताएं कि कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स के कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सेम ऑप्शन है यही क्वेश्चन वाले। कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स के बीटा ऑप्शन आएगा, साइटोप्लाज्म ऑफ रेड ब्लड सेल्स। 21 कहते हैं कि 2 month ओल्ड बेबी कॉज लूज मोशन आफ्टर एवरी फीड इमीडिएटली, अगर वो करेगा तो गैस्ट्रोकोलिक है, अगर काफ़ी 6 से 8 घंटे के बाद अगर वो ऐसे करता है तो लैक्टोज इंटॉलरेंस। ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ टेपम क्या होती है? प्राजिक्वांटिल इज ग्रेटर देन निक्लोसामाइड। प्लाज्मा प्रोटीन सिंथेसिस बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग कौन करवाते हैं? लीवर। प्रोजोन किसे कहते हैं कि एंटीबॉडी फिनोमेना एक्सेस होता है। नर्व डैमेज बिटवीन C5 एंड C6 कौन सी होती है? C6 होती है। वुमेन हैविंग लॉर्डोसिस के अंदर किस सेगमेंट में होता है? लंबर में। और काइफोसिस किस में होता है? थोरेसिक के अंदर, और इसमें हार्ट शेप वर्टिब्री होती है यहाँ पे। लेटिस्मस डोर्साई की नर्व सप्लाई कौन सी होती है? थोरैको डोर्सल। और सीरेटस एंटीरियर की नर्व सप्लाई कौन सी है इसमें? सॉल्ट निमोनिक, अगर आपको याद हो SALT, तो डेल्टा ऑप्शन, लॉन्ग थोरेसिक नर्व। 27 आफ्टर गनशॉट इंजरी लोअर बैक पेशेंट हैज लॉस ऑफ कॉन्ट्रालेटरल पेन। अब ये वो वाला आ गया है, ठीक है। पेन तो उसकी लॉस हुई है लेकिन टेम्परेचर जो है वो इंटैक्ट है। इसका मतलब है कि सेक्शन ऑफ डोर्सल रूट, क्योंकि डोर्सल रूट क्या है? क्योंकि ये सेंसरी सप्लाई कर रहा है स्पाइनल कॉर्ड की, ठीक है। तो सिर्फ हमारे पास डोर्सल रूट सेक्शन जो है ना स्पाइनल कॉर्ड का, वो डैमेज हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट पे उसने कहा है, देखें कि लेफ्ट 28 MCQs है कि राइट साइड पे हेमीप्लेजिया और लेफ्ट साइड कॉन्ट्रालेटरल साइड पे पेन और टेम्परेचर लॉस हुई है बिलो 88। तो ये इसमें D2 किस चीज़ का सिनेरियो कि हेमी सेक्शन हुआ है एट T8 लेवल। अब आप लोगों को इसका डिफरेंस थोड़ा क्लियर हो गया? 27 और 28 और जो प्रीवियस वाला किया था, ठीक है। हाँ जी। 29 कहते हैं कि ए पेशेंट विद इन लार्ज हैंड एंड फीट विद एसोसिएटेड जॉइंट ऑन MRI मास कंप्रेसिंग द ऑप्टिक कियास्मा कौन सा होता है? बाइटेम्पोरल हेमियोनोपिया। पेशेंट हैज रेज प्रोलैक्टिन, तो प्रोलैक्टिनोमा का जो ट्यूमर होता है वो ऑप्टिक कियास्मा कौन सा करता है? मिडल ऑप्टिक कियास्मा को वो कंप्रेस कर रहा होता है और विजन लॉस हो जाती है, बायलैटरल टेम्पोरल विजन लॉस हो जाएगी। गन शूट वुंड इंजरी रिजल्ट इन डैमेज टू द शियाटिक नर्व, तो शियाटिक नर्व अगर डैमेज भी हो जाए तो कौन सा मसल स्पेयर रहेगा? ग्लूटियस मैक्सिमस, क्योंकि ग्लूटियस मैक्सिमस की नर्व सप्लाई कौन सी है? इंफीरियर ग्लूटियल नर्व। सीलिक ट्रंक किसकी ब्रांच है? एओटा की ब्रांच है, ठीक है। और आगे ब्रांचेस कौन सी देते हैं? कॉमन हेपेटिक आर्टरी, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, ठीक है।
33 कहते हैं कि 24-year-old मैरिड फीमेल हैविंग सेकेंडरी एमेनोरिया, हर FSH एंड LH लेवल ज़्यादा हैं उसके, ठीक है। अल्ट्रासाउंड ऑफ पेल्विस डज नॉट शो एनी एबनॉर्मेलिटी, व्हाट कैन बी द पॉसिबल कॉज, क्या है, गोनेडल फेलियर हो चुका है उसे, इसकी वजह से सेकेंडरी एमेनोरिया हुआ है ना, ठीक है। 34 कहते हैं कि अडीमा एंड लिवर सिरोसिस क्या होता है, ऑनकोटिक प्रेशर उसका डिक्रीज हो जाता है, और अगर कोई हार्ट की कार्डिक इशू है या कोई पल्मोनरी कॉज होगा देन अडीमा की कॉज क्या होगी, कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे आप, डेल्टा, इंक्रीज हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। 35 कहते हैं कि जब भी डायबिटिक के अंदर एंटी डिप्रेसेंट अगर वो ले रहा है, ठीक है, नोजिया हेडिंग है, हु इज रिसीविंग एंटी डिप्रेसेंट बिकम पॉलीयूरिक, तो कॉज क्या आएगा, नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंस्पायर्स हो जाएगा उसे, ठीक है। 36 कहते हैं कि पेशेंट हैज़ लाइपोमा ऑन द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड 5 सेंटीमीटर रिलेशन टू स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट विद स्ट्रक्चर लाइगेटेड लीडिंग टू प्रोफ्यूज ब्लीडिंग, तो कौन सा होता है, सेकंड पार्ट ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी। लोअर मॉलिकुलर वेट ऑफ हेपरिन कौन सा होता है, एंटीथ्रोमिन 3 को एक्टिवेट करवाता है और इनहिबिट किसको करता है, फैक्टर 10 को। नेक्स्ट MCQs में वो कहते हैं कि 35-year-old फीमेल है, प्रेजेंट करिए 6 मंथ की हिस्ट्री के साथ, फिंगर्स उसकी पेल हो गई हैं, Raynaud phenomena also having mild dyspnea with no waist, tight skin with mild enlarged spleen, creatinine was high, urea also raised, Na उसका पॉजिटिव है, HB10 पे है, प्लेटलेट्स नॉर्मल है, डायग्नोसिस क्या होगा, स्क्लेरोडर्मा। जब भी रेनॉल्ड फिनोमेना, जब भी आपको टाइट स्किन के साथ कोई आएंगे ना कि एना पॉजिटिव है, इस तरह के सिम्टम, तो आपका स्नेरियो डायग्नोस क्या होगा, स्क्लेरोडर्मा। 39 थोड़ा सा समझने वाला, पेशेंट एट हाई डेड स्पेस और 1/3 ऑफ टाइडल वॉल्यूम। अब कहते हैं कि जो टाइडल वॉल्यूम बेसिकली नॉर्मली कितना होता है, टाइडल वॉल्यूम कितना होगा, 500, और डेड स्पेस अगर टाइडल वॉल्यूम में 1/3 कर दें तो कितनी बनेगी, 500 को 3 पे डिवाइड करें, कितना आंसर आएगा आपका, ऑलमोस्ट 150, ठीक है। अब जो 150 है ना, अब आगे स्टेटमेंट पढ़ें, वो कहते हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वीनस ब्लड के अंदर 45 था, ठीक है, लेकिन अब जो डेड स्पेस अब वो हाइट पे चला गया, नॉर्मली उसका कितना था, 45 पे था, ठीक है, लेकिन जब वो हाइट पे जा रहा है तो जो डेड स्पेस है उसने उसे और डाइल्यूट कर देना है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है ना वो 45 से बिलो होना चाहिए, क्योंकि जो डेड स्पेस है वो उस कार्बन डाइऑक्साइड को डाइल्यूट कर रही है, ठीक है। तो 45 से जो कम वाली वैल्यू है वो हम अप्रोक्सीमेटली क्या चूज़ करेंगे, 30 चूज़ करेंगे, ठीक है। ये वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत समझ आ गया आपको, 39 वाला नहीं आया, एक बार रिपीट कर देती हूँ। अच्छा, अब वो कहते हैं कि नॉर्मली क्या होता है कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है और जो EtCO2 होता है वो ऑलमोस्ट इक्वलेंट ही होता है, मतलब कोई ज़्यादा इसमें डिफरेंस नहीं होता, ठीक है। लेकिन वो कहते हैं कि जब वो पेशेंट हाइट के ऊपर दिए ना, पेशेंट एट हाइट डेड स्पेस ऑफ 1/3 ऑफ टाइडल वॉल्यूम, तो जो टाइडल वॉल्यूम है वो उस कार्बन डाइऑक्साइड को जो EtCO2 है ना वो उसे थोड़ा सा डाइल्यूट करेगा, तो उसकी वैल्यू जो है ना, नॉर्मल वैल्यू जो वीनस ब्लड के अंदर थी वो 45 थी, तो वो उससे कम होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। तो 45 से अप्रोक्सीमेटली कम वैल्यू उसकी कौन सी है, तो वो ऑप्शन जो है अल्फा 30 तक ऑलमोस्ट इसकी वैल्यू, मतलब इतना डिफरेंस आएगा जब डेड स्पेस जो है वो 150 पे होगी, ठीक है। थोड़ा बहुत समझ आई अब आप लोगों को, वरना मैं आपको इसमें ग्रुप में सेंड कर दूँगी इसकी जो एक्सप्लेनेशन है ना, ठीक है। ये थोड़ा सा ना, अच्छा, अगर आप ऊपर वाली डेड स्पेस आपको नहीं भी समझ आती ना, फिर भी आप बस इतना देख लें कि वीनस ब्लड की जो अंदर कार्बन डाइऑक्साइड थी ना वो 45 थी, अब जो EtCO2 है ना वो उससे थोड़ी सी रेंज में नीचे होती है, मतलब कम होती है, ठीक है। तो वो अप्रोक्सीमेटली 30 के इक्वलेंट होगी अगर नॉर्मली कार्बन डाइऑक्साइड वीनस ब्लड के अंदर 45 होती है तो, ठीक है। नहीं समझ आया, अच्छा मैं ना आपको इसकी रिटन एक्सप्लेनेशन ग्रुप के अंदर शेयर कर दूँगी, आपको इसमें आपने स्क्रीनशॉट लेके सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। अगर तो उसमें आपको थोड़ा बहुत समझ आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, मैं एक और दफ़ा थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ अगर आप लोगों को समझ आ जाए। वो कहते हैं कि पेशेंट एट हाइट डेड स्पेस ऑफ 1/3 ऑफ द टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। टाइडल वॉल्यूम उसका 500 था, जब हमने उसकी डेड स्पेस 1/3 की तो उसका आंसर आ गया 150, ठीक है। अब वो कहते हैं कि नॉर्मली जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है वो वीनस ब्लड के अंदर 45 होता है, ठीक है, ये नॉर्मली बात कर रहा है। लेकिन जो EtCO2 है ना वो वीनस ब्लड के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना उससे काफ़ी मतलब कुछ पॉइंट्स उससे कम होती है,
अब वो कहते हैं कि अगर डेड स्पेस 1/3 ऑफ टाइडल वॉल्यूम होगी तो जो EtCO2 है वो अप्रोक्सीमेटली कितने कम होगी 45 से, तो वो अप्रोक्सीमेटली 30 पे चली जाएगी उसकी वैल्यू। मतलब ये थोड़ा सा लॉजिक भी है, कॉन्सेप्ट इसमें थोड़ा सा कम है। अब थोड़ी सी समझ आ रही है आप लोगों को? आवाज़ क्लियर आ रही है सबको? अच्छा चलिए, मैं आपको अगर थोड़ी थोड़ी आगे है ना चले, बाकी मैं आपको अच्छा आंसर भी ना मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन फर्दर रिटर्न सेंड कर देती हूँ ग्रुप में, ठीक है, थोड़ा सा और इजी करके। 40 कहते हैं कि ठीक है, आपने मुझे स्क्रीनशॉट अभी इसका लेके ना, इसकी पिक्चर लेके ग्रुप में सेंड कर दें तो मैं आपको इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन इजी करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। ग्रुप में फिर आप लोग इसे भेज दीजिए क्योंकि मुझे भूल जाता है लेक्चर खत्म होने के बाद, ठीक है। साइड इफेक्ट ऑफ डाइक्यूमेरोल क्या होता है? ये डिले करती है क्लोटिंग को, ठीक है। कॉमन कॉज ऑफ प्रोलॉन्ग्ड बीटी क्या होती है? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। डाइसाइक्लोमीन एक्ट ऑन किस रिसेप्टर के ऊपर एक्ट करता है? मस्करेनिक एंटी मस्करेनिक M3 के ऊपर। अल्फा रिदम ऑन EEG इंक्रीज फ्रीक्वेंटली ड्यू टू, ठीक है। तो वो लो कार्बन डाइऑक्साइड कब होती है? हाइपर वेंटिलेशन के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो उसमें कम हो जाएगी, ठीक है। यहाँ इन्होंने कंडीशन दी हुई है कि उसकी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज किस कंडीशन के अंदर डिक्रीज होगी? हाइपोग्लाइसीमिया में, हाइपोथर्मिया के अंदर और लो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में, और जो हाइपो वेंटिलेशन होगी यानी कि PaCO2 के थ्रू, ठीक है। अब क्वेश्चन में उन्होंने दिया हुआ है कि इसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज है, तो किन किन कंडीशन में उसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है? जब बॉडी हाइपरग्लाइसीमिक स्टेट में होती है, हाइपरथर्मियामिक कंडीशन में होती है, हाइपर स्टीरॉइड्स यानी कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ज़्यादा होते हैं, और हाइपर वेंटिलेशन के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जब डिक्रीज होता है, ठीक है। ये आपने दोनों पॉइंट्स याद करने के, इंक्रीज फ्रीक्वेंसी कब होगी और डिक्रीज फ्रीक्वेंसी कब होगी, मतलब चेंज भी आ सकता है ऑप्शन में, ठीक है। ए वेव किस चीज़ को कोरेस्पॉन्ड करती है? PR सेगमेंट को। ए पेशेंट आफ्टर RTA हैड सीवियर ब्लड लॉस एंड नो यूरिन आउटपुट इवन आफ्टर 3 days। पेशेंट फेल टू यूरिन आउटपुट, उसकी क्रेटिनिन जो है उसकी रेज्ड हो गई 9.5। बायोप्सी के अंदर जब आता है कोर्टिकल नेक्रोसिस एंड सीवियर एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस, ये दो चीज़ें किस चीज़ का साइन है? रिवर्सिबल इंजरी का। क्या? कोर्टिकल नेक्रोसिस एंड एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस, और क्रेटिनिन उसकी जो है वो 9.5 पे आएगी। इसका मतलब है कि अब इरिवर्सिबल हो चुकी है वो, ठीक है। मीडियल कोलेट्रल लिगामेंट डैमेज एट एल्बो, कौन सी नर्व यहाँ पे डैमेज हो जाएगी? अल्नर नर्व। सेमी सर्कुलर केनाल के अंदर कौन सा एक्सेलरेशन होता है? एंगुलर एक्सेलरेशन। लीनियर एक्सेलरेशन किस में होता है? बस में, आर्टिकल में। वर्टिकल किस में होता है? लिफ्ट में या सेक्यूल में। FEV1 एंड FVC प्रिजर्व्ड किस में प्रिजर्व्ड हो जाते हैं? इंटरस्टिशियल लंग डिजीज के अंदर। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ओंडानसेटोन क्या होता है? 5-HT3 रिसेप्टर ब्लॉकर्स, ठीक है। और ये किस, इसकी एक क्लिनिकल इंडिकेशन बताएं, किस कंडीशन में आप देते हैं? GIT की फार्मा में हमने की थी, ठीक है। कीमोथेरेपी इंड्यूस वॉमिटिंग या पोस्ट ऑपरेशन की वॉमिटिंग में देते हैं। और डायबिटिक गैस्ट्रोप्राइसिस के अंदर हम कौन सी ड्रग दे रहे थे? डायबिटिक गैस्ट्रोप्राइसिस में मेटोक्लोप्रामाइड, वेरी गुड। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डीअरेंज PT एंड APTT किस कंडीशन में होते हैं? लीवर डिजीज में। व्हाट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट ऑफ हीमोफीलिया, कौन से होते हैं? कायरोप्रेसिपिटेट। ए पेशेंट प्रेजेंट विद एक्यूट पेनफुल स्वेलिंग इन फ्रंट ऑफ हिज ईयर ऑन एग्जामिनेशन पैरोटिड ग्लैंड जब भी इनलार्ज हो जाता है तो कौन सी नर्व जो है वो इन्वॉल्व होती है? ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व, जो सारे ईयर के सारे इस एरिया को सप्लाई कर रही होती है ना। अगर राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व का तो सारी चीज़ें इंक्रीज हो जाती हैं ना, और PS डिक्रीज होती है और हाइड्रोजन आयन इंक्रीज होते हैं। सी डाइवर्स आफ्टर डाइविंग डेवलप शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ज्वाइंट पेन, तो कॉज क्या होगा? नाइट्रोजन बबल्स बनेंगी जिसकी वजह से शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी और ज्वाइंट पेन होगी। विच इज़ नॉट ऑनगो जीन एंड कॉज जीन एम्पलीफिकेशन, कौन करवाता है? APC जीन, ठीक है। राइट लोअर लिम्ब का पैरालिसिस आ जाते हैं तो लोअर लिम्ब के अंदर कौन सी आर्टरी होती है? एक्यूट ACA होती है, ठीक है। और अगर हार्ट आ जाए, अपर लिम्ब आ जाए और फेस आ जाए देन कौन सा ऑप्शन होगा? अल्फा, MCA आ जाएगी। और हिमिनोमस हेमिनोपिया के अंदर कौन सी होगी? अगर विजुअल डिफेक्ट आ रहा है तो चार्ली ऑप्शन आ जाएगा। 57 कहते हैं कि 35 ईयर ओल्ड मेल यूजुअली गोज टू दुबई एंड हैज़ हिस्ट्री ऑफ
immoral sexual activities and does not use any protection. He has problem in walking dark and loses balance, absent light reflex, no pain sensation. Most likely diagnosis क्या आएगा? टेबिस डोर्सालिस. 58 कहते हैं कि पेशेंट आफ्टर आरटीए हैविंग अर्ज इनकॉन्टिनेंस विच रीजन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड कौन सा डैमेज होगा? अर्ज इनकॉन्टिनेंस किसके अंदर आती है? इसमें करेक्ट ऑप्शन किसी को पता है कौन सा है? अर्ज इनकॉन्टिनेंस यूएस से किसके अंदर आता है? अबव सैक्रल में आएगा. अल्फा ऑप्शन इज करेक्ट. ठीक है. रिगार्डिंग अपर मोटर न्यूरॉन लीजन ऑफ फेशियल नर्व ऑल आर ट्रू एक्सेप्ट वन आई स्पेयर नहीं होती. इसमें दोनों आईज के अंदर ही डिफेक्ट आ रहा होता है. ठीक है. 60 कहते हैं कि पर्सन विद डिफिकल्टी इन स्वेलिंग देयर वाज सम वाइट ग्रोथ और सूडो हाइफी कौन होता है? कैंडिडियासिस होते हैं. रिगार्डिंग एरिथ्रोसाइट ट्रू क्या होता है? इंक्रीज विस्कोसिटी ऑफ द ब्लड. कार्सिनोमा है अगर पेंक्रियास का पेशेंट इज एडमिटेड इन वार्ड हिज ब्रदर इज नॉट लेटिंग यू टू टेल द पेशेंट दैट द पेशेंट हैज कैंसर बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिज ब्रदर इट वुड किल द पेशेंट. मतलब उसका भाई कह रहा है कि आपने मरीज को नहीं बताना. इवन फास्टर एट इवनिंग द पेशेंट फैमिली इज गोइंग टू कम टू द हॉस्टल टू डिस्कस एंड वी विल हैव ए कॉन्फ्रेंस टुगेदर. तो अब आप क्या करेंगे? तो आप उसके भाई को कहेंगे कि आपने पेशेंट की फैमिली को और पेशेंट को बताना ज़रूरी है वरना ये डिसऑनेस्टी हो जाएगी. ठीक है. मतलब मेडिकल एथिक्स के खिलाफ है ये बात. 63 कहते हैं कि 53 ईयर ओल्ड पेशेंट हैड नॉन प्रोडक्टिव कफ. ठीक है. अब देखिए स्मोकिंग वाला तो फैक्टर चला गया है और स्मोकिंग के बगैर कौन सा ऐसी चीज़ है जो लंग्स कार्सिनोमा कॉज करता है? स्मोकिंग, देन रेडोन, देन एस्बेस्टोस. ठीक है. तो उसके अकॉर्डिंग रेडोन एक्सपोजर एक को ऑप्शन आ जाएगा. 64 ए चाइल्ड हैड हिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग फ्रॉम रस्टी पाइप प्रेजेंट विद एनीमिया रिज ड्रॉप कॉन्स्टिपेशन एंड पेरिफेरल न्यूरोपैथी. क्या कॉज होगा उसका? लेड पॉइजनिंग के ये सारे सिम्टम्स आते हैं. 65 कहते हैं कि वुमेन प्रेजेंट फीवर चिल्स कोला कलर्ड यूरिन. ठीक है. और क्रिसेंट शेप है वो कौन सा होता है? प्लाज्मोडियम फल्सीपेरम. ठीक है. पेशेंट प्रेजेंटेड विद प्रॉक्सिमल फीवर चिल्स ड्यूरेशन. अब सेम है. क्रिसेंट वाला ऑर्गेनिज्म कौन सा होता है? प्लाज्मोडियम फल्सीपेरम होता है. 67 ए पेशेंट विद यूरोपोरफायरिन 1 इन यूरिन डायग्नोज्ड विद कॉन्जेनिटल एरिथ्रोपोइटिक पोरफोरिया. एंजाइम कौन सा डेफिशिएंट होता है? सीरम के अंदर कौन सा डेफिशिएंट होगा? यूरोपोरफायरिन 3 सिंथेज. और यूरिन के अंदर आएगा यूरोपोरफायरिन 1 आएगा. ठीक है. और वैसे बॉडी के अंदर किसका डिफेक्ट आएगा? यूरोपोरफायरिनोजन 3 सिंथेटेज. ठीक है. ये आप सबको पता ही होगा पहले. 68 कहते हैं कि फीमेल शॉर्ट स्टूचर है, ए मेनोरिया है, एब्सेंट सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स. स्टेरियोटाइपिंग अब उसकी क्या होगी? टर्नर सिंड्रोम. इंटेस्टाइनल इन्फॉक्शन ड्यू टू सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी ब्लॉक. विच पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन स्पेयर्ड? तो डिसेंडिंग कोलोन और सिग्मॉइड कोलोन स्पेयर होगी. बाकी सबके अंदर नेक्रोसिस हो जाएगी. आफ्टर फैटी फूड अगर आप बहुत ज़्यादा फैटी फूड खा लें तो क्या रिलीज़ होगा? कोलिसिस्टोकाइनिन ऑन ईसीजी. व्हाट कोरिलेट विद द कंप्लीट डिपोलराइज्ड वेंट्रिकल. कौन से होते हैं? एसटी सेगमेंट शो करता है कंप्लीटली डिपोलराइज्ड वेंट्रिकल को. 72 कहते हैं कि अगर पीआर प्रोलोंगेशन हो रही है और सक्सेसिव बीट आ रही है फॉलोड बाय ड्रॉप बीट्स तो मोबिट्स 1 एवी ब्लॉक होगा. ठीक है. ड्रॉप बीट्स आ रही हैं उसके अंदर. 73 कहते हैं कि पेशेंट प्रेजेंट विद ए वस्कुलर नेक्रोसिस. ए वस्कुलर नेक्रोसिस के अंदर कौन सी आर्टरी इन्वॉल्व हो जाती है? मीडियल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी. 74 स्मॉल सेफनेस वेन इज अकम्पनीड बाय. कौन सी नर्व इसके साथ गुजर रही होती है? शूरल नर्व. ठीक है. और सेफनेस नर्व किसके साथ गुजर रही होती है? ग्रेट सेफनेस वेन के साथ. ठीक है. उसका नाम बड़ा है ना तो वो ग्रेट के साथ गुजरेगी. ठीक है. और डीप पेरोनियल नर्व के साथ कौन सी आर्टरी पास कर रही होती है? एंटीरियर टिबियल नर्व. 75 एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स आर्टरी किसकी ब्रांचेस हैं? एक्सिलरी आर्टरी की. इंट्राहेपेटिक प्रोटीन की एनाबोलिज्म करता है और एक्स्ट्रा हेपेटिक प्रोटीन की तोड़ता है, कैटाबोलिज्म करता है. कौन सा हार्मोन करता है? कोर्टिसोल. 77 इन होमोस्टेसिस द वर्ड गेन का मतलब क्या होता है? एग्जेजरेशन ऑफ द क्लॉटिंग मैकेनिज्म. एस्प्रिन लो डोजेस में क्या करता है? इनहिबिट करता है थ्रोम्बोएक्सिन A2 को. थेरापेटिक डोज ऑफ द ड्रग किस चीज़ को इंडिकेट करती है? पोटेंसी को. इंडेक्स किसको शो करते हैं? सेफ्टी को. विंडो किस चीज़ को शो करती है? रेंज को. 80 कहते हैं कि पेशेंट प्रेजेंट करता है पेरिफेरल टिंगलिंग, नमनेस, डिप्लोपिया एंड विजुअल डिस्टर्बेंस डायग्नोज्ड विद डीमाइलिनेशन डिजीज. व्हाट टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम सेल्स आर अफेक्टेड इन दिस डिजीज. तो डीमाइलिनेशन में कौन से सेल्स होते हैं? ओलाइगोडेंड्रोसाइट्स. 81 पेशेंट हैड कफ. एक्सरे शो हाइलर लिम्फेडिनोपैथी, नॉन केजिएटिंग ग्रैनुलोमा एंड देयर इज रैश ऑन लोअर लिम्ब. तो डायग्नोसिस क्या होगा? सार्कोइडोसिस. नॉन केजिएटिंग ग्रैनुलोमा कॉज करती है. 82 प्रेग्नेंट लेडी है. रूमेटिक फीवर के अंदर कौन कौन से वैल्व इन्वॉल्व होते हैं? माइट्रल इज ग्रेटर देन एओटिक इज ग्रेटर देन ट्राइकस्पिड. ठीक है. ये आपने सीक्वेंस याद रखना है. MAT निमोनिक से याद रख लें. M फॉर माइट्रल स्टेनोसिस, देन एओटिक स्टेनोसिस, देन ट्राइकस्पिड वैल्व.
चाइल्ड हैविंग हाइड्रोसेफलस ड्यू टू डिफेक्ट किस में आता है? एरेक्नॉइड ग्रेनुलेशन के अंदर। कैनन ए वेव किसके साथ एसोसिएटेड होती है? कंप्लीट हार्ट ब्लॉक के साथ। इन विच कंडीशन देयर इज नो रिलेशन बिटवीन पी एंड क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स? उसमें रिलेशन, क्योंकि एट्रिया जो है वो अपना सेपरेट साइकिल स्टार्ट कर देता है, जो वेंट्रिकल है वो अपना सेपरेट साइकिल स्टार्ट कर देता है। किस में होता है? कंप्लीट हार्ट ब्लॉक में या कैनन ए वेव्स में। कौन ट्रेकिया के दरमियान? अच्छा, हमने पहले इंफ्रा हेड किया था, चाहे स्टर्नो हेड हो। ट्रेकिया और सारे जो हेड के सारे मसल्स होते हैं, इनके दरमियान से कौन सी आर्टरी पास करती है? कॉमन कैरोटिड आर्टरी। सुपीरियर थायराइड आर्टरी कहाँ से ओरिजिनेट करती है? एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी से। ए क्रोनिक प्रेशर ओवरलोड इन द लेफ्ट वेंट्रिकल ड्यू टू एओटिक स्टेनोसिस, तो वो क्या कॉज करता है? लेफ्ट वेंट्रिकल की हाइपरट्रोफी कॉज करता है। हार्ट फेलियर के अंदर, हार्ट फेलियर इज कॉमनली विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन किसके अंदर होते हैं? एसोसिएटेड किस कंडीशन के साथ होता है? फाइब्रिनस पेरिकार्डाइटिस के साथ। 90 कहते हैं कि फीमेल केम विथ शिजोफ्रेनिया, बीपी उसका 110/70 है, वो ड्रग ले रही थी फिनोथायाजीन फॉर दिस नाउ प्रेजेंट विद मिल्की डिस्चार्ज फ्रॉम द निपल। ठीक है, तो अब जो ये सारा प्रोलैक्टिनोमा है, हमने बात की है कि प्रोलैक्टिनोमा की आपको वैल्यूज़ याद है कि एक माइक्रो होता है, एक मैक्रो होता है और एक ड्रग इंड्यूस होता है। आपको इसकी वैल्यूज़ याद है ना कि कब वो मैक्रो होगा, कब माइक्रो होगा, कब ड्रग इंड्यूस होगा? ठीक है, हाँ जी, मैक्रो 5000 से अबव होगा और ठीक है, और ड्रग इंड्यूस जब वो 1000 से कम होगा। तो उसने ड्रग हिस्ट्री दी है कि फिनोथायाजीन। अच्छा, जो ये भी साइकोटिक जितने भी पेशेंट होते हैं ना, जो एंटी साइकोटिक ड्रग्स होती हैं, इनका साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा आता है पेशेंट के अंदर और फर्दर क्लिनिकली बहुत ज़्यादा सिम्टम आ जाते हैं इनके साइड इफेक्ट्स की वजह से। 91 कहते हैं कि हाईएस्ट चांस ऑफ न्यूमोथोरेक्स अक्कर वाइल पासिंग सीवीपी लाइन कहाँ से पास कर रही है? अगर सबक्लेवियन वेन को वो डैमेज कर देगी तो न्यूमोथोरेक्स डेवलप हो जाएगा। 92 पेशेंट केम इन ईआर विद चेस्ट पेन, ईसीजी नॉर्मल, कार्डिक एंजाइम नॉर्मल, डॉक्टर एडवाइस थोरेसिक केस एक्सरे, विच वन ऑफ दिस स्ट्रक्चर इज कार्टिलेजिनियस प्लस। तो ये कौन सा ज्वाइंट हमने बात की थी? कोस्ट्रोकोंड्रल ज्वाइंट के ऊपर इसका इन्फ्लेमेशन हो जाती है, कोस्ट्रोकोंड्राइटिस डेवलप हो जाता है। पेरिकार्डियोसेंटेसिस में आपने नीडल कहाँ से पास करनी है? फोर्थ एंड फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस लेफ्ट टू द स्टर्नम। 94 सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव कॉज सेप्टिक शॉक, विच कंपोनेंट ऑफ द सेल वॉल कॉज द शॉक? तो शॉक के लिए कौन करवाता है? एक्सोटॉक्सिन होता है, पेप्टाइडोग्लाइकेन होता है और ग्राम नेगेटिव में एंडोटॉक्सिन होता है या एलपीएस होता है। 95 जब भी फीमर का फ्रैक्चर आएगा 5 डेज के बाद डेथ है तो फैट एम्बोलिज्म होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि पेशेंट विद हिस्ट्री ऑफ सिवियर चेस्ट पेन क्रशिंग है, लेफ्ट आर्म के अंदर 2 आवर्स के बाद जो आएगा मायोग्लोबिन होती है, बेस्ट टेस्ट ईसीजी होता है, 6 आवर के बाद सीके ट्रोपाई वगैरह होता है। ठीक है, 97 कहते हैं कि हाइपरट्रोफी कार्डियोमायोपैथी के अंदर फीचर क्या आती है? माइक्रो, ये आपने नीचे वाले सारे फीचर एक दफ़ा रीड कर लेना है। माइक्रोसाइड डिसेरिया आता है, न्यूक्लियर इनलार्जमेंट हो जाती है, बाई न्यूक्लिएशन आ जाती है, 3 टाइप ऑफ फाइब्रोसिस आ जाती है, इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस, रिप्लेसमेंट और स्कार फाइब्रोसिस एंड पेरीवस्कुलर फाइब्रोसिस। तो अगर ऑप्शन में सारे होंगे तो आप ऑल ऑफ द अबव चूज़ करेंगे। लास्ट ऑप्शन में ये दिया होगा। एथलीट्स में क्या होता है? ब्रेडिकार्डिया होता है, कार्डिक आउटपुट ज़्यादा होती है, स्ट्रोक वॉल्यूम ज़्यादा होता है। नेक्स्ट भी 99 भी सेम है कि हार्ट रेट डिक्रीज होगा, ब्रेडिकार्डिया होगा, स्ट्रोक वॉल्यूम ज़्यादा होगा, कार्डिक आउटपुट भी ज़्यादा होगा। 100 फास्टेस्ट मैकेनिज्म फॉर बीपी चेंज क्या होता है? बैरो रिसेप्टर्स होते हैं। 100 कहते हैं कि मीन आर्टीरियल प्रेशर जब भी 60 से बिलो हो जाएगा तो आपने आंखें बंद करके क्या चूज़ करना है? सीएनएस इस्केमिक रिस्पॉन्स। साइटोकैरोटीन किसका इंटरमीडिएट फिलामेंट है? नियोप्लेजिया एंड इन्फेक्शन के अंदर। कार्सिनोमा ऑफ द सर्विक्स डायग्नोज क्या करवाता है? इन्वेजन टू बेसमेंट मेम्ब्रेन। 104 फीचर ऑफ मिनरेलोकोर्टिकॉइड ट्यूमर, इसमें क्या हो जाता है? हाइपोकैलिमिया के साथ आएगा। 105 आफ्टर ओवोल्यूशन oocyte इन विच फेज? ओवोल्यूशन के बाद जो है वो प्रो फेस में आ जाता है, सेकेंड मियोटिक डिवीजन में। ठीक है, ओवोल्यूशन के बाद की बात की जा रही है, पहले की बात नहीं की जा रही। ठीक है, तो वो डिवाइड करते हुए अपनी सेकेंड मियोटिक डिवीजन के अंदर आ जाता है ओवोल्यूशन के बाद। ठीक है, 106 गैस्ट्रोस्नीमियस साइज जो मसल है उसका रिड्यूस हो गया, आपने कास्ट अप्लाई की थी तो क्या हो जाएगा? डिसयूज एट्रोफी हो जाएगी, प्रोटीन सेंसिस डिक्रीज हो जाएगी, उसकी डिग्रेडेशन इंक्रीज हो जाएगी। 107 फीचर ऑफ वेल डिफरेंशिएटेड स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा क्या आता है? केराटिन पल्स आती हैं। ए पेशेंट हैज़ ए फिब्रिलेशन ऑन एंड एमआई ऑन ऑटोप्सी, उसका लाइकली क्या आएंगे? प्रोलॉन्ग्ड इमोबिलाइजेशन की वजह से उसकी डेथ हो जाती है ना। 109 कहते हैं कि पेशेंट ऑफ सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी चेस्ट एक्सरे के अंदर बायलैटरल हाइलर लिम्फेडिनोपैथी, यानी हमने भी रिपीट किया, तो कौन सा होता है?
हाइली लिम्फेडिनोपैथी के साथ सार्कोइडोसिस। प्लेसिबो का इफेक्ट क्या आता है कि आप जैसे मल्टीविटामिन्स पेशेंट को आप दे देते हो तो सब्जेक्ट को नहीं पता होता, अब जैसे इलिटरेट पेशेंट आते हैं क्लिनिक पे तो आपको नहीं पता होता कि डॉक्टर ने उसे, मरीज़ को नहीं पता होता कि डॉक्टर ने उसे कौन सी ड्रग दी है, ठीक है, तो प्लेसिबो ड्रग होती है। आफ्टर इंग्वाइनल हर्निया सर्जरी व्हाट विल अकर इन वुंड ऑफ क्लीन सूचर, अगर क्लीन सूचर वुंड होगा ना तो उसमें कुछ टाइम के बाद स्कार फॉर्मेशन हो जाएगी, यानी कि वो हीलिंग की तरफ आ रहा है। 112 इन विच पैरासाइट इन्फेक्शन रेस्पिरेटरी ट्रैक का कौन सा होता है, एस्केरियासिस होता है। पेशेंट अंडरगो गैस्ट्रेक्टमी, जब भी हो जाए गैस्ट्रेक्टमी के बाद प्रेजेंट विद पेरिफेरल नंबनेस, एमसीवी इंक्रीज होगी, डेवलप मैक्रोसिटिक एनीमिया, पर्निशियस एनीमिया आप कह सकते हैं, ठीक है, तो उसमें ट्रीटमेंट क्या देते हैं, इंजेक्शन देंगे विटामिन B12 का, क्योंकि इंट्रिंसिक फैक्टर जो है वो मतलब सारा कुछ नहीं रिलीज़ होगा तो वो B12 के साथ अटैच नहीं होगा तो बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होगा तो डेफिशिएंसी हो जाएगी, फिर हम इंजेक्ट करेंगे इंजेक्शन B12। 114 contraction of skeletal muscle involve activity of large number of protein required for relaxation of muscle, कौन सी होती है, रिलैक्सेशन की बात की जा रही है तो वो ट्रोपोमाइसिन होती है। मैलिग्नेंट ट्यूमर, लोकली मैलिग्नेंट ट्यूमर कौन सा होता है, बेसल सेल कार्सिनोमा इज ग्रेटर देन एम्ब्लियोब्लास्टोमा। 116 कहते हैं कि पर्सन वर्किंग इन सर्कस, ये हमने कल भी किया था, जो सर्कस में मीडियल नेक्रोसिस हो गई है तो मार्फन सिंड्रोम, क्रोमोसोम नंबर 15 होता है और प्रोटीन भी फिब्रिलिन होती है। 117 पेशेंट हेड इज टर्न टू सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट, अच्छा देखने के लिए जो भी विजन के साथ कौन सा एसोसिएटेड होता है, सुपीरियर कॉलिकुलस, और अगर आपने सुनने की, अगर आपको किसी ने आवाज़ दी है, ठीक है, देन आपका जो ब्रेन मूव करेगा उसमें कौन सा पार्ट होता है, इन्फीरियर कॉलिकुलस। एब्सेंट बारवायरस किसके साथ एसोसिएटेड होता है, बर्कन लिम्फोमा कॉज करता है। असेंड ऑफ हॉर्स टू किडनी हमने रीनल में भी डिवाइस कर लिया था फर्स्ट एड में कि इन्फीरियर मिजेंटेरिक आर्टरी जो है करवा रही होती है इसे, मतलब वो जो फ्यूज़ हो जाती है ना नीचे से दोनों किडनी, डिसेंड नहीं होता। डेथ ड्यू टू फूड पॉइजनिंग बाय विच ऑर्गेनिज्म कौन करवाता है, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, और डायरिया की वजह से डेथ कौन करवाता है, विब्रो कोलरा। ट्विन प्रेगनेंसी है लेकिन ओवम दो हैं तो सेपरेट एमनियोटिक सैक उनका दो बनते हैं। पेशेंट ऑन एंटी ट्यूबरकुलस ड्रग प्रेजेंट विद बिग टो स्वेलिंग एंड हाइपर यूरिसीमिया, मोस्ट लाइकली क्या होता है, पायराजिनामाइड। ऑप्टिक रेडिएशन एंड इंटरनल कैप्सूल, हाँ जी, ऑप्टिक रेडिएशन एंड इंटरनल कैप्सूल तो ये कौन से होते हैं, प्रोजेक्टिंग फाइबर्स होते हैं, और जो कॉर्पस कोलोजम होता है वो दूसरे फाइबर्स होते हैं जो एल्फा ऑप्शन में दिया हुआ है। 124 कहते हैं कि इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर इन प्रिवेंटिंग रिफ्लेक्स ऑफ सीकल मटेरियल इनटू द आइलियम, सीकम का मटेरियल आइलियम में ना चला जाए उसके लिए बॉडी में कौन से वेल्व होते हैं, इलियोसिकल वेल्व। 125 ए लेडी हु सी सेक्शन वाज डन लीकेज ऑफ ब्लड ड्यू टू डैमेज ऑफ, तो किसकी आर्टरी की वजह से, कौन सी आर्टरी की वजह से आ रही है, ब्रांचेज ऑफ यूट्राइन आर्टरी। अच्छा जब भी सी सेक्शन के अंदर आएगा ना तो डैमेज किसके अंदर होगा, यूट्राइन आर्टरी के अंदर। अगर पेल्विस की कोई सर्जरी है तो डिफेक्ट किस में आएगा, ओवेरियन आर्टरी के अंदर, ठीक है। 126 ब्रॉडबैंड एरिया 321, इसमें क्या होता है, ये रिसीव कर रही होती हैं ऑल सोमैटोसेंसरी सेंसेशन, सोडियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम लेमिना बेसल लेमिना ऑफ द किडनी, कौन करवा रहा होता है, सोडियम पोटाशियम ATPase पंप। द yeast species that are resistant to echinocandidiosis are, कौन से होते हैं, कैंडिडा ऑरिस होते हैं जो रेजिस्टेंट होते हैं। ए पेशेंट केम टू ऑफ्थेल्मोलॉजी क्लिनिक विद कंप्लेन ऑफ ग्रेजुअल लॉस ऑफ विजन, आहिस्ता आहिस्ता उसकी लॉस हो रही है, अकोमोडेशन रिफ्लेक्स प्रेजेंट है लेकिन लाइट रिफ्लेक्स लॉस हो गया, ठीक है, तो ये एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है कि ये इंसेफ्लाइटिस के पेशेंट में ऐसे होता है, ठीक है। अगर टोसिस इनहाइड्रोसिस और मायोसिस होती है, ये हॉर्नर सिंड्रोम में होता है, और ओल्ड एज के अंदर क्या होता है, प्रेसबायोपिया होता है, उसमें क्या होता है, अकोमोडेशन मतलब मरीज़ को नज़र नहीं आता लेकिन राइट रिफ्लेक्स इसमें प्रेजेंट होता है, तो प्रेसबायोपिया के साथ आपको ओल्ड एज की हिस्ट्री दी होगी। रिगार्डिंग हॉजकिन डिजीज़, तो उसमें क्या होता है, मेल्स के अंदर बेटर प्रोग्नोसिस होता है, जो ब्यूटामीन को अपोज कौन करती है, लेब्यूटालोल। एंथ्राक्स की ड्रग ऑफ चॉइस किसकी होती है, एंथ्राक्स में ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन। A group of students were studying difference between the partial pressure of oxygen and carbon dioxide in different arteries of the body. They find major difference between किसके अंदर आता है, aorta and pulmonary artery के अंदर। In case of ARDS, the ventilation is hampered as a result of interstitial edema। तो हमने बात की लंग्स के अंदर जब भी होता है edema के अंदर बेसिकली क्या हो जाता है, कैपिलरी परमिबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। 135 कहते हैं डिफरेंस बिटवीन द रूट ऑफ राइट लंग फ्रॉम द लेफ्ट लंग, उसमें क्या आता है, नंबर ऑफ प्राइमरी ब्रोंकाई का डिफरेंस आ रहा होता है।
136 diagnosed appendicular tumor which has mucinous secretion called pseudomyxoma peritoni. तो ये इसका जो ट्यूमर होता है कहाँ पे स्प्रेड कर जाएगा, सीडिंग टू अदर साइड के ऊपर चला जाएगा, ठीक है। 137 विटामिन के की डेफिशिएंसी के अंदर क्या चीज़ इंक्रीज हो जाएगी, प्रोथ्रोम्बिन टाइम। लीवर के जितनी भी डिजीजेज आती है ना, जॉन्डिस वगैरह हो रहा है, तो उसमें क्या चीज़ इंक्रीज हो जाती है, पीटी टाइम इंक्रीज हो जाएगा। ये एमसीक्यूज पेपर में बहुत दफ़ा आया हुआ है, ठीक है। ए पेशेंट थोड़ी सी स्टेम चेंज होती है, लेकिन लीवर के जब भी इस तरह के इशू आ रहे हो तो पीटी टाइम रेज्ड होता है। ए पेशेंट कैन नॉट रिकॉग्नाइज ऑब्जेक्ट विथ क्लोज आई। तो लीजन कहाँ पे आ रहा है, सेकेंडरी सोमेस्थेटिक एरिया के अंदर आ रहा है, ठीक है। 139 सिंपथेटोमाइमेटिक ड्रग, इसमें से कौन सी है, एम्फीटामीन है। 140 कहते हैं कि 6 ईयर ओल्ड गर्ल है, प्रेजेंट करी ओपीडी के अंदर एक्सेसिव फेशियल हेयर्स हैं। एडल्ट साइज एक्सटर्नल जेनिटेलिया और डीपनिंग ऑफ वॉइस है। शी आल्सो गिव हिस्ट्री ऑफ 2 सिबलिंग्स डेथ सफरिंग फ्रॉम सेम कंडीशन। तो जैसे सेम फैमिली के अंदर डेथ हो रही है और ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, इसका कुछ पीछे हमने किया था ना, उसमें इसका सोमेस्थेटिक एसोसिएशन एरिया भी दिया हुआ था, इको दिया हुआ था पीछे उन्होंने, मतलब स्टेम ऑलमोस्ट सेम ही है इसकी, लेकिन इराटा में उन्होंने ऐसा चेंज नहीं किया। पीछे हमने इसका वैसे इको ही किया है, सोमेस्थेटिक एसोसिएशन एरिया किया हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर वैसे इको ही है, लेकिन इराटा के अंदर उन्होंने चेंज नहीं किया, ठीक है। तो 140 में आंसर क्या होगा कि एक्सेसिव फेशियल हेयर आ रहे हैं बच्चे के अंदर, चेस्ट हेयर आ रहे हैं, तो 21 हाइड्रोक्सिलेज की डेफिशिएंसी होती है। हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस 2 में क्या कॉज करवाता है, सर्वाइकल कार्सिनोमा कॉज करवा देता है, ठीक है। कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट कहाँ प्रेजेंट होता है, सब एंडोकार्डियम के अंदर प्रेजेंट होता है। एवी नोड कहाँ प्रेजेंट होता है, एंडोकार्डियम के अंदर होता है, और एसए नोड सब एपिकार्डियम के अंदर होता है। हीट लॉस को कंट्रोल कौन कर रहा होता है, प्री ऑप्टिक एरिया। 144 कहते हैं कि फीमेल विथ फीवर, सोर थ्रोट, 60% बी लिम्फोसाइट्स हैं। बी एंड टी लिम्फोसाइट की नॉर्मली बॉडी के अंदर कितनी होती हैं, टी लिम्फोसाइट 80 होती हैं, 80 to 90 होती है, और बी लिम्फोसाइट कितनी होती हैं, 10 to 20% होती हैं। क्वाइट इंस्पायरेशन के अंदर कौन सा मसला जो वर्टिकल डायमीटर को इंक्रीज करता है, वो डायाफ्राम होता है। हेंस बॉडीज किसके अंदर प्रेजेंट होती हैं, हाँ जी डायाफ्राम होता है। हेंस बॉडीज किसके अंदर प्रेजेंट होती हैं, G6PD के अंदर। और G6PD के अंदर हमने क्या किया था, इसमें कौन सी क्या होता है, इसमें इंट्रावस्कुलर हिमोलिसिस हो रहा होता है। इंट्रावस्कुलर हिमोलिसिस इज ग्रेटर देन फेविज्म। डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट एल्वुलाई एंड लोब्यूल किसका फंक्शन है, प्रोजेस्टेरोन का। ए पेशेंट एग्जिबिट साइन ऑफ माइस्थेनियस ग्रेविस बॉडीज या बेस्ट कन्फर्मेटरी टेस्ट कौन सा होता है, इलेक्ट्रोमायोग्राफी करवा लेते हैं। गुड डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप क्या चीज़ रिक्वायर करता है, एक्टिव लिसनिंग। इंक्रीज एक्स्ट्रा सेलुलर कैल्शियम क्या कॉज करता है, सिस्टोलिक अरेस्ट और हाइपरकैलेमिया डायस्टोलिक अरेस्ट करवाएगा। मिनरेलोकोर्टिकॉइड सिक्रेटिंग जो ट्यूमर होता है उसकी फाइंडिंग में हाइपोकैल्सीमिया हो जाएगा। यहाँ इन्होंने रीज़न भी बताई हुई है कि क्या हो जाता है, हाइड्रोजन जो है वो, एल्ब्यूमिन जो है वो सारा, एक मिनट, अच्छा वो कह रहे हैं कि नॉर्मली जो है हाइड्रोजन एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड कर रहा होता है, लेकिन जैसे ही हाइड्रोजन जो है वो सारा एक्सक्रीट या सिक्रीट हो जाएगा, तो जो आयोनाइज्ड कैल्शियम है वो एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड कर जाएगा, तो सीरम के अंदर ओवरऑल हाइपोकैल्सीमिया डेवलप हो जाएगा, ठीक है। और इसमें हाइड्रोजन सिक्रीट क्यों हो रहा है, क्योंकि जो मिनरेलोकोर्टिकॉइड का जो ट्यूमर है ना, उसमें आल्डोस्टेरोन ज़्यादा होता है, ठीक है। तो वो हाइड्रोजन को सिक्रीट ज़्यादा करेगा, कोलेक्टिंग डक्ट्स के ऊपर जाके मेटाबॉलिक अल्कलोसिस डेवलप हो जाएगी, ठीक है। 152 कहते हैं कि विच पैरामीटर ऑफ द हार्ट आर चेक्ड, एक्सरसाइज के अंदर हम क्या चेक करते हैं, कार्डिक आउटपुट इंक्रीज हो जाती है। 133 कहते हैं कि हमने पहले भी किया था कि रिफ्रैक्टिव एरर अगर आ रहा है, 70 ईयर ओल्ड मैन विद अकोमोडेशन मॉड्यूलेशन रिफ्रैक्टिव एरर विल बी गिवन। तो ये 56 की वैल्यू अबव ही होगी, 59 डायोप्टर्स तक, ठीक है। ओल्ड एज के अंदर वैसे भी जाके अकोमोडेशन लॉस हो जाएगी ना उसकी। 154 कहते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया प्रोटीन कहाँ कौन जनरेट कर रहा होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिनेकुलम। एओटिक स्टेनोसिस विल कॉज लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी डिक्रीज हो जाती है। जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम किसके साथ एसोसिएट करती है, पेप्टिक अल्सर डिजीज के साथ। 157 जब भी इस तरह का स्नैरियो ना बोन पेन्स के साथ और कैल्शियम के सारे नॉर्मल लेवल हैं, मतलब बॉर्डर लाइन के ऊपर होते हैं, तो आपने क्या चूज़ करना है, प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, ठीक है। इतना लंबा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है।
प्रोटॉन को जीन्स ये कौन सी होती है? नॉर्मल जीन्स होती हैं जो कंट्रोल करती हैं सेल ग्रोथ को। फैट पैड ऑफ द अपर आईलिड इज एंटीरियर टू, एंटीरियरली इसके क्या होता है? लिवेटर एपिन्यूरोसिस होता है। और पोस्टीरियरली क्या होता है? ऑर्बिटल सेप्टम होता है। टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटैलिस के अंदर टाइप 2 होती है। और ए प्लास्टिक अनीमिया में कौन सी होती है? ए प्लास्टिक अनीमिया में 3 होती है। एक्टिव थायराइड हार्मोन की कौन सी फॉर्म होती है? फ्री T3 होती है। और मैक्सिमम कंसंट्रेशन किसकी होती है? T4 की होती है। एंटर किस फॉर्म में करता है? T4 के अंदर करता है, लेकिन ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए T3 चाहिए होता है। और एक्टिव फॉर्म भी T3 ही होता है। सोडियम की एब्जॉर्प्शन DCT से इंक्रीज हो जाएगी व्हेन प्लाज्मा वॉल्यूम अगर इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। जहाँ जैसे वाटर होता है उसके साथ ही सोडियम होता है, ठीक है। तो सोडियम की भी एब्जॉर्प्शन हो जाएगी। अच्छा, यहाँ तक एक दो MCQ जो आपको थोड़ा सा आ रहा है ना, समझ नहीं आई, वो आप लोग पिक्चर लेके ना आप लोगों ने ग्रुप में भेज देनी है, तो फिर आगे मैं फर्दर आपको उसकी एक्सप्लेनेशन सेंड कर दूँगी, ठीक है। बाकी रिवाइज करें अभी। चलो ठीक है। किसी कोई और MCQs भी अगर आप लोगों को नहीं समझ आया तो आप चाहे मुझे पर्सनली मैसेज कर दें, मैं आपको एक्सप्लेनेशन उसकी सेंड कर दूँगी, ठीक है। अच्छा, इसोफेगस हिस्टोलॉजी शो कौन सी एपिथेलियम होती है? कवर्ड बाय क्यूबॉइडल एपिथेलियम, हैज स्क्विमस एंड स्मूथ सेल्स, हैज स्ट्रेटिफाइड स्क्विमस एपिथेलियम, हैज 3 लेयर ऑफ मसल्स। स्ट्रेटिफाइड स्क्विमस एपिथेलियम थ्रू आउट होती है। विच बैक्टीरिया हैज नो सेल वॉल? क्लेमेडिया, माइकोप्लाज्मा, क्लेप्सियला, ई कोलाई, शिगेला। माइकोप्लाज्मा। सिमेटोडिन गिवन बिफोर सर्जरी बिकॉज डिक्रीज करते हैं एसिडिटी को, डिक्रीज वॉल्यूम ऑफ द गैस्ट्रिक एसिड, पोटेंट एस्ट्रो रिसेप्टर ब्लॉकर, इंक्रीज गैस्ट्रिन। Theophylline causes more effect in the children in due to increased metabolism, decreased excretion, increased receptor, decreased receptor. Nerve damage between C5 and C6 will be C5, C6, C4, C3. Roson phenomena is antigen access, antibody access, antigen depletion, antibody depletion. ठीक है। ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ टेपवर्म इज एल्बेंडाजोल, मेबेंडाजोल, नाइक्लोसामाइड, मेट्रोनिडाजोल। Dicyclomine act on which receptor? 5-HT3, M3, D2, D1, 5-H2. Side effect of dicumarol is delayed clotting, increased bleeding time, decreased clotting time, abnormal clotting. Alpha rhythm on EEG increased frequency. अगर frequency increase कब होती है? Hypoglycemia, hypothyroidism, exercise, low glucocorticoids, low PaCO2, क्योंकि hyperventilation हो रही होती है इसमें. Regarding erythrocyte, true is produce in kyrene and spectrin, use carbohydrate aerobically, increase viscosity of the blood. Yes, cell membrane is fragile due to pressure of, ठीक है। Aspirin at low doses inhibit which one of the following? Inhibit thromboxane, inhibit prostaglandin, PGI2, inhibit collagen, inhibition of leukotrienes. Athletes will have increased stroke volume and heart rate, increased venous return and increased heart rate. या increase heart rate and decrease stroke volume. ठीक है। Child having hydrocephalus due to defect in meninges, ependymal cells, epidural space, arachnoid granulations. Artery palpated between trachea and sternocleidomastoid is external jugular vein, external carotid artery, common carotid artery, internal jugular vein. ठीक है। Fastest mechanism for BP changes is CNS ischemic, baroreceptor, cortisol, RAS. Deaths due to food poisoning by which organism? Salmonella, Corynebacterium, Botulinum, Bacillus, Shigella. Epstein Barr virus causes the following disease: non-Hodgkin lymphoma, Burkitt lymphoma, meningioma, medulloblastoma. Sympathomimetic drug is which one of the following? Propranolol, amphetamine, nebivolol, alflazocine. ठीक है। Optic radiation and internal capsule are projecting fiber, dissociative fibers, terminal fibers. Broadband area 3 to 1 is receive all special senses, receive all somatosensory sensation, receive all motor sensation.
Fat pad of the upper eyelid is anterior to orbital septum, molar muscle, orbicularis, levator aponeurosis. Conducting system of the heart is located in which one of the following? Circus terminalis, moderator band, subepicardium, subendocardium, left atrium. Active thyroid hormone is T4, free T3, bound T3, bound T4. अच्छा चलें ठीक है, अब 9 वाला आप लोगों ने कल कर लेना है और 10 हम लोग करेंगे कल, और फिर 11 मैं आपसे वाइवा लूँगी और फिर इंशाल्लाह हमारी एसके ख़त्म हो जाएगी, ऑलमोस्ट कल ही ख़त्म हो जाएगी ना। 11 वाला तो आप लोग करेंगे, ठीक है। और बस आगे अब आज फर्स्ट एड से कौन सा टॉपिक है डबल ए से? रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी। अच्छा, रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी की भी ना आप ज़रूर कोशिश कीजिएगा कि डबल ए के भी एमसीक्यूज़ कर लें। जो रेस्पिरेटरी फर्स्ट एड के ऊपर है ना, वो कोई इतनी बहुत ख़ास नहीं दी हुई, ठीक है। कोशिश करें कि रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी और पैथोलॉजी दोनों के एमसीक्यूज़ आप डबल ए से करें, ठीक है। ये रफ़ी के ऊपर भी इतनी अच्छी नहीं दी हुई और फर्स्ट एड के ऊपर भी कोई एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू वाली नहीं दी हुई जैसे एग्ज़ाम में एमसीक्यूज़ आते हैं, ठीक है। तो अपना टाइम थोड़ा बहुत निकाल के ना अपनी कोशिश करनी है कि जो 2 डेज़ है ना हमारे, जब हम रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी और पैथोलॉजी रिवाइज करेंगे तो आपने डबल ए करने की कोशिश करनी है, ठीक है। फिजियोलॉजी तो आपने लाजमी आज रात को सोने से पहले करके सोने हैं एमसीक्यूज़ डबल ए के, ठीक है। अच्छा 119 ओल्ड एज के अंदर चेस्ट वॉल की कंप्लाइंस इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? अच्छा, चेस्ट वॉल की कंप्लाइंस और लंग कंप्लाइंस में थोड़ा सा डिफरेंस है। जो चेस्ट वॉल की कंप्लाइंस है ना, वो ओल्ड एज के अंदर डिक्रीज होगी, एंड लंग कंप्लाइंस अगर आपसे बात की जाए तो वो इंक्रीज होगी, ठीक है। ये थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आपने माइंड में रखना है। अच्छा, आप मुझे बताएं कि अगर वीनस ब्लड के अंदर 40 mmHg प्रेशर है तो ऑक्सीजन की सैचुरेशन कितने % होगी? 75। कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग के अंदर HB ऑक्सीजन कर्व राइट साइड पे जाएगी या लेफ्ट साइड पे जाएगी? लेफ्ट साइड पे जाएगी। अच्छा, अब आप मुझे बताएंगे डिफ्यूजन लिमिटेड कौन कौन सी 2 गैसेस होती हैं जो डिफ्यूजन लिमिटेड होती हैं? और वेरी गुड, परफ्यूजन लिमिटेड कौन सी होती हैं? ठीक है, एंड N2O। अच्छा, मुझे बताएंगे एस्थमा के अंदर डेड स्पेस इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? इंक्रीज होगी। अच्छा, इसके जो ये वाले हैं डेड स्पेस वाले, डिफ्यूजन लिमिटेड, परफ्यूजन लिमिटेड, और ये जो ऊपर वाला टेबल है टाइडल वॉल्यूम वाला, इसमें से बहुत एमसीक्यूज आते हैं, मतलब 4-5 तो पक्के आ ही जाते हैं, ठीक है। और ये थोड़ी सी मुश्किल चीज़ें हैं जो आपको पेपर में बैठ के कंफ्यूज कर रही होती हैं। अभी आप पढ़ेंगे आपको बहुत सिंपल लगेगा, ठीक है, लेकिन जब बुक बंद करके आप एक टफ सिचुएशन के अंदर बैठ के उस एमसीक्यूज को सॉल्व कर रहे होते हैं ना, तो माइंड फिर स्किप कर जाता है कि ये ऑक्सीजन था, कार्बन डाइऑक्साइड था, कार्बन मोनोऑक्साइड था, मतलब थोड़ी बहुत, ठीक है। तो जो इस तरह की चीज़ें होती हैं ना, ये आपका फोकस चाह रही होती हैं कि आप बार बार रिवाइज करें ताकि आपके माइंड में रिटेन हो जाए। अच्छा, हाइपोटेंशन में बताएं कि डेड स्पेस इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है? इंक्रीज हो जाती है। और स्लीप के दौरान डेड स्पेस इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन में डेड स्पेस इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है? डिक्रीज होगी। और ट्रेकियोस्टमी में क्या होगी? डेड स्पेस इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? पल्मोनरी एम्बोलिज्म में इंक्रीज हो जाएगी। अच्छा, मुझे बताएं कि FRC की वैल्यू ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ में इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? इंक्रीज होगी, ठीक है, वेरी गुड। और FEV1 ओवर FVC की रेशियो रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ में इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है? इंक्रीज होती है, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि एरिथ्रोपोएटिन को इनहिबिट कौन करता है?
erythropoietin is inhibited by theophylline। रेस हाई आल्टीट्यूड के अंदर जाके कौन सा एसिड बेस बैलेंस डिस्टर्बेंस आती है हाई आल्टीट्यूड पे? रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस। तो आप मुझे बताएं कि फीटल की रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स कितने वीक्स पे स्टार्ट हो जाती हैं? 12। नॉर्मल A/A ग्रेडियंट रेशियो नॉर्मल वैल्यू कितने mmHg होता है? अगर प्रेशर में बात करें तो 0 to 10 और अगर नॉर्मल बात करें तो 0.8। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ क्रोनिक कोर पल्मोनेल इज, क्रोनिक कॉज क्या है कोर पल्मोनेल की? एम्बोलिज्म। ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट आर एरेटेड बाय, कौन इसे एरेट यानी कि हवा वगैरह कौन लगवा रहा होता है इसे? टर्शरी ब्रोंक्यूल्स। अच्छा ये हमने बात की थी एक एमसीक्यूज भी हमने एसके में किया हुआ है कि एक्यूमुलाइजेशन टू आल्टीट्यूड, जब आप हाई आल्टीट्यूड के अंदर जाते हैं तो कंपनसेटरी मैकेनिज्म बॉडी क्या क्या करती है? इसके फीचर्स याद हैं आपको? इंक्रीज हो जाती है डिफ्यूजन कैपेसिटी ऑफ लंग्स, पॉलीसाइथीमिया, इंक्रीज पल्मोनरी वेंटिलेशन एंड पल्मोनरी वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन। ठीक है, ऑप्शन को आपने ऑप्शन में जो इन चारों वैल्यू से आपको आपने इन चारों पॉइंट्स को रटा ही लगा लेना है कि इन चारों में से जो ऑप्शन में दिया गया होगा आपने वही चूज करना है। ठीक है, मोस्ट कॉमन फेटल रिस्पॉन्स टू हाइपोक्सिया इज ब्रेडिकार्डिया। लंग्स एक्सपेंड ड्यू टू पॉजिटिव प्रेशर की वजह से या नेगेटिव प्रेशर की वजह से? फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस कितनी होती है, कितने ml होती है? ये अभी हमने क्वेश्चन भी किया था। नॉर्मली कितनी होती है? 150 ml होती है। ठीक है, अच्छा इंस्पायरेशन को स्टिमुलेट कौन सा सेंटर करता है ब्रीदिंग रेगुलेशन करने के लिए? मेडल्ला के अंदर इंस्पायरेशन को स्टिमुलेट करता है और वो लोअर पोन्स के अंदर प्रेजेंट है। लोअर पोन्स के अंदर कौन सा एरिया होता है जो स्टिमुलेट होता है इंस्पायरेशन के दौरान? एपनियोस्टिक सेंटर। और कौन सा ऐसा सेंटर है जो इनहिबिट करता है इंस्पायरेशन को और रेगुलेट करता है इंस्पायरेटरी वॉल्यूम और रेट को? जब वॉल्यूम एंड रेट की बात है आपने आंखें बंद करके क्या चूज करना है? निमोटैक्टिक सेंटर। और प्राइमरली अगर रिस्पॉन्सिबल की जाए, प्राइमरली इंस्पायरेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप। और एक्सरसाइज के दौरान एक्सपायरेशन में और एक्सरसाइज में कौन एक्टिवेट हो जाता है? वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। हीमोग्लोबिन बाइंड्स विद फेरिक फॉर्म ऑफ आयरन, किसके साथ बाइंड कर जाती है? ठीक है, HbM बन जाएगा ना वो। एयर की ह्यूमिडिटी ओटी के अंदर कितनी होती है? ऑपरेशन थिएटर के अंदर एयर ह्यूमिडिटी 55% होती है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ फिजियोलॉजिकल हाइपोक्सीमिया इज हाइपरवेंटिलेशन, हाइपोवेंटिलेशन, हाइपरकैप्निया या हाइपोक्सिया? हाइपोवेंटिलेशन। एक्सरसाइज में क्या क्या चीज़ें इंक्रीज हो जाती हैं और क्या चीज़ डिक्रीज हो जाएगी रेस्पिरेटरी में? कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगी और ऑक्सीजन की कंजप्शन हो जाएगी। टाइडल वॉल्यूम शुड बी गिवन टू एनेस्थेटिक इंडिविजुअल, कितना देंगे? हाफ देन नॉर्मल, ट्वाइस देन नॉर्मल या नॉर्मल ही? ट्वाइस देन नॉर्मल। ऑक्सीजन अफिनिटी इंक्रीज्ड बाय, ऑक्सीजन की अफिनिटी को इंक्रीज कौन कौन सी कंडीशन में इंक्रीज हो जाती है? कंडीशन के नेम आपको आने चाहिए। HbF में और हाइपरथर्मिया या हाइपोथर्मिया? वेरी गुड, हाइपोथर्मिया। और एसिडोसिस या अल्कलोसिस? अल्कलोसिस में। ठीक है, ऑक्सीजन अफिनिटी नॉट इंक्रीज्ड बाय, कौन सी चीज़ उसे इंक्रीज नहीं करवाती? हाइपोक्सिया। इंक्रीज एयरवे रेजिस्टेंस कॉज रेजिडुअल वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा? अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा हो तो
वो भी रेजिडुअल वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम फर्स्ट एड से रिवाइज करते हैं और आप इसके एमसीक्यूज कोशिश कीजिएगा फिर कर लें। फर्स्ट एड से ये ना बहुत अच्छी नहीं दी हुई, रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी अच्छी दी हुई है, पैथोलॉजी तो बस थोड़ी थोड़ी दी हुई है। पेपर के अंदर इतनी कम, मतलब फर्स्ट एड में एनफ नहीं है जो है ना, इसकी फार्मा भी इतनी अच्छी नहीं दी हुई यहाँ पे। अच्छा चलें, एम्फाइसीमा के अंदर कॉम्प्लाइंस लंग की इंक्रीज होती है, डिक्रीज हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। पल्मोनरी फाइब्रोसिस के अंदर कॉम्प्लाइंस इंक्रीज होती है, डिक्रीज हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। अच्छा, मसल ऑफ फोर्स्ड एक्सपायरेशन कौन सा मसल होता है जो फोर्स्ड एक्सपायरेशन करवाता है? इंटरनल इंटरकोस्टल, वेरी गुड आंसर। क्वाइट इंस्पायरेशन में कौन सा होता है? क्वाइट इंस्पायरेशन एक्सटर्नल इंटरकोस्टल एंड डायाफ्राम। असेस्ट्री मसल ऑफ एक्सपायरेशन कौन सा होता है? असेस्ट्री मसल ऑफ एक्सपायरेशन एक्सटर्नल ओब्लिक आ जाएगा। असेस्ट्री मसल, असेस्ट्री मसल के अंदर वो तो जो आप लोग बता रहे हैं ना, वो आ जाएंगे फोर्स्ड इंस्पायरेशन के। फोर्स्ड इंस्पायरेशन के मसल में आते हैं स्टोनोक्लेडोमास्टोइड एंड सीरेटस एंटीरियर। फोर्स्ड असेसरी मसल ऑफ एक्सपायरेशन कौन सा आता है? एब्डोमिनल मसल आ जाएंगे ना, एक्सटर्नल ओब्लिक। ठीक है, अच्छा अब आप मुझे बताएं, ये इसमें ना सारे जो फॉर्मूला मैथमेटिकल चीज़ें हैं तो आपने खुद ही याद रखना है। एल्वुलर वेंटिलेशन का फॉर्मूला याद है किसी को? ये एग्जाम में आता है, मतलब उसने आपको थोड़ी सी वैल्यू दी होंगी, छोटा सा स्नैरियो, और फॉर्मूला आपने पुट करके आंसर निकाल लेना है। इजी सा फॉर्मूला है, वेरी गुड। वी टी हमारे पास क्या आ जाएगा? टाइटल वॉल्यूम माइनस वी डी, जो ये डेड स्पेस आ जाएगी, मल्टीप्लाई कर लेना है रेस्पिरेटरी रेट से। ठीक है, अच्छा अच्छा, जोन 3 के अंदर बताएं, ब्लड का ज़्यादा प्रेशर होता है या ऑक्सीजन ज़्यादा होती है? जोन 3 के अंदर वेंटिलेशन ज़्यादा होती है या परफ्यूजन ज़्यादा होती है? ब्लड ज़्यादा होता है, ठीक है, परफ्यूजन ज़्यादा होती है, वेंटिलेशन कम होती है। अच्छा, यहाँ एरो ना इन्होंने दोनों ही वैसे दिए हुए हैं कि वेंटिलेशन भी इन्होंने ज़्यादा दी हुई है, परफ्यूजन भी ज़्यादा दी है, लेकिन ओवरऑल जो है ना जो परफ्यूजन थोड़ी सी जोन में इसमें ज़्यादा होती है, और जो जोन 1 होता है ना उसके अंदर एयर यानी कि ऑक्सीजन वेंटिलेशन थोड़ी सी ज़्यादा होती है और ब्लड थोड़ा सा कम होता है, और जोन 2 में ऑलमोस्ट इक्वल होता है। लेकिन आपने वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो ओवरऑल अगर बात करें तो जोन 1 में वो ज़्यादा होती है और जोन 3 में वो कम होती है। ठीक है, मतलब आपने ये भी याद रखना है। अच्छा, इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड मोस्ट कॉमनली किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करती है? ये एग्जाम में हर दफ़ा आता है ये भी। ठीक है, और ये कितने परसेंट होता है ऑलमोस्ट इस फॉर्म में? 90% होता है, 70 to 90%। अच्छा, इसके बाद आप बताएं कि एक्सरसाइज के अंदर राइट शिफ्ट हो जाएगा या लेफ़्ट शिफ्ट हो जाएगा? राइट साइड पे चला जाएगा, वेरी गुड। अच्छा, आप बताएं कि एक्सरसाइज के अंदर हार्ट के अंदर क्या चेंजेस आती हैं, और रेस्पिरेटरी तो हमने डिस्कस कर ली है, हार्ट के अंदर क्या चेंजेस आती हैं? एक्सरसाइज का रिस्पॉन्स क्या आता है? हार्ट रेट ज़्यादा हो जाता है, टेकीकार्डिया होगा सबसे पहले, स्ट्रोक वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, और पल्मोनरी ब्लड फ्लो भी ज़्यादा हो जाएगी, परफ्यूजन ज़्यादा हो जाएगी उसकी। अच्छा, अब आप मुझे बताएं कि साइनाइड पॉइजनिंग के अंदर ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व शिफ्ट करेगी या क्या होगा उसे? साइनाइड पॉइजनिंग के अंदर नॉर्मल रहेगी, और कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर शिफ्ट किस साइड पे करेगी या नॉर्मल रहेगी? लेफ्ट साइड पे। तो ये एमसीक्यूज आता है, और लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दिया। अब आपने इसका ट्रीटमेंट क्या करना है?
ट्रीटमेंट में से 100% हाइपरबैरिक ऑक्सीजन देंगे, ठीक है। थिंक यहाँ पे फिजियोलॉजी ख़त्म हो गई है। अच्छा मैं ना आपको बुक आप लोग ओपन कर लें, मैं आपको इसमें से बता देती हूँ कि आपने फिजियोलॉजी क्या क्या इम्पोर्टेंट है ज़्यादा, ठीक है। सबसे पहले ना जो ये वाला पेज है, पेज नंबर 678, ठीक है। इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि कितने वीक्स के अंदर कौन सा होता है। जैसे सूडो ग्रैनुलर होता है वो 5 to 17 वीक्स पे होता है। ग्लैनिकुलर जो होता है वो 16 to 25, मतलब एक तो वीक्स पता होने चाहिए मेन। और एम्ब्रियोनिक के अंदर ट्रेकिया बनता है, सूडो ग्लैनुलर के अंदर ब्रोंक्यूल और टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स बनते हैं, ठीक है। मतलब मेन आपने ना इसका, या मैं आपको इसकी टेबल की ना वो पिक्चर सेंड कर देती हूँ जो मैंने बनाया हुआ है अपने बुक पे, ठीक है। उसके बाद कॉर्नल एट्रेसिया इतना नहीं आता। उसके बाद जो ये दी हुई है RDS, न्यूनेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, ठीक है। इसमें आपको पता होना चाहिए कि सरफेस टेंशन, एल्वुलर कोलैप्स, ये सारी चीज़ें, ठीक है, इसका मेन आता है। बाकी ये जो एल्वुलर सेल टाइप्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप 1 क्या करती है, टाइप 2 क्या करती है, एल्वुलर मैक्रोफेजेस, ठीक है। ये आपने बहुत अच्छे से कर लेना है, ठीक है। और इसमें आपको पता होना चाहिए कि कंडक्टिंग जोन के अंदर क्या आता है। कंडक्टिंग जोन की एपिथेलियम कौन सी होती है, इसमें मेन ये पता होना चाहिए बस। अच्छा ये अगर आप ये नीचे टेबल से भी करें ना तो वहाँ भी लिखा होता है कि कंडक्टिंग जोन की एपिथेलियम कौन सी होती है, सूडो स्ट्रेटिफ। बस आप ये इसकी अगर पिक्चर ही कर लेना, मैंने इसकी थ्योरी नहीं की हुई ऊपर वाली, सिर्फ अगर आप इसकी पिक्चर करते जाएं कि जब ट्रेकिया और ब्रोंकाई होते हैं उसमें एपिथेलियम कौन सी है, सूडो स्ट्रेटिफाइड कोलमनर एपिथेलियम, ठीक है। नीचे आप आएँ, ब्रोंक्यूल्स के अंदर एपिथेलियम कौन सी होती है, ब्रोंक्यूल्स के अंदर सिंपल सिलिएटेड आ जाएगी, ठीक है। और टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के अंदर क्या आ जाएगी, सिंपल सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम आ जाएगी, ठीक है। और रेस्पिरेटरी जोन के अंदर बस आपने ये करना है, स्क्वेमस एपिथेलियम होती है, ठीक है। ये हो गया। आगे लंग्स की आपको ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको मेन पता होना चाहिए, ठीक है। राइट लंग क्या होता है, लेफ्ट लंग, और ये 3 पॉइंट्स आपने करने हैं कि सुपाइन पोजीशन में क्या होता है, वाइल लाइन क्या होता है, और अपराइट पोजीशन में क्या होता है, ठीक है। डायाफ्राम के स्ट्रक्चर ये सारे MCQs आते हैं। T8 से वेना केवा पास करते हैं, T10 से इसोफेगस और T12 से एओर्टिक हियाटस, और ये नीचे वाली बाइफर्केशन भी, ठीक है। ये नेक्स्ट आप लोग मतलब मेरे साथ साथ चल रहे हैं ना, समझ आ रही है, ठीक है। अच्छा जो 682 पे आ जाएं, जो ये सारे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स हैं ना, ये आपने डबल ए से जहाँ से आपको इजी लगे, या अगर आपको इसकी नहीं भी समझ आती ना तो यूट्यूब के ऊपर ना इसकी थोड़ी वीडियोस इजी करके भी पड़ी हुई हैं, ठीक है। बस किसी तरह आपको जिस तरह याद होता है ना, या आपने कैपेसिटीज़ और वॉल्यूम याद कर लेने हैं, ठीक है। अच्छा आगे जो है ना वर्क ऑफ ब्रीदिंग, इसमें आपने नॉर्मली याद रखना है कि ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ में रेस्पिरेटरी रेट कम हो जाता है और VT ज़्यादा हो जाती है। रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ में इससे ऑपोजिट होता है, रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज़ हो जाता है और VT कम हो जाता है, ठीक है। डिटर्मिनेशन ऑफ फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस, एक दफ़ा बस आपने इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए कि ये इसका फॉर्मूला है, फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस एनाटॉमिकल डेड स्पेस के इक्वल होती है, ठीक है। ये एक दफ़ा रीड कर लेना। बाकी जो नेक्स्ट पेज पे है वेंटिलेशन वाले फार्मूलाज ये आपने अच्छे से कर लेने हैं। इलास्टिक रिक्वायल का आपको पता होना चाहिए कि जो इनवर्ड पुल ऑफ द लंग है वो बैलेंस कौन कैसे होती है, आउटवर्ड पुल ऑफ द चेस्ट वॉल, इस तरह ये बैलेंस हो जाता है, ठीक है। कंप्लाइंस की बात करें, आपको पता होना चाहिए कि किस चीज़ में ओल्ड एज में और एम्फाइसीमा में कंप्लाइंस इंक्रीज़ हो जाती है और कंप्लाइंस डिक्रीज़ कब होती है, पल्मोनरी फाइब्रोसिस में, नमूनिया, ARDS और पल्मोनरी एडिमा, ठीक है। नेक्स्ट फेज पे आ जाए पल्मोनरी सर्कुलेशन, इसमें आपको परफ्यूजन लिमिटेड और डिफ्यूजन लिमिटेड ये गैस हमने कर ली है पीछे, ठीक है। और ये भी हमने बात कर ली है कि एम्फाइसीमा में क्या होता है, पल्मोनरी फाइब्रोसिस में क्या होता है, ठीक है। पल्मोनरी वस्कुलर रेजिस्टेंस एक दफ़ा फार्मूला देख लीजिएगा। वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो ये बस आपको डायग्राम से ही रिवाइज अपनी कर लेनी है आप लोगों ने, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि जब ऑब्स्ट्रक्शन हो तो शंट बन जाता है, और जब फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस में हमारे पास बेसिकली क्या हो जाता है, वो इन्फिनिटी पे चली जाती है पल्मोनरी एम्बोलिज्म में। शंट में वो 0 पे आ जाती है और एम्बोलिज्म में वो इन्फिनिटी पे चली जाती है, ठीक है। एल्वुलर गैस रेशियो ये आपको फॉर्मूले आने चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड आपको तीनों पॉइंट्स बताने के कितने कितने फॉर्म में होते हैं, ठीक है। हाइपोक्सिया की एक दफ़ा जो 5 पॉइंट्स हैं ना एक दफ़ा आपने रीड कर लेने हैं कि क्या क्या कॉज होती है, ठीक है। हीमोग्लोबिन का ये आपको पता होना चाहिए कि इसमें 2 अल्फ़ा होती हैं, 2 बीटा होती हैं, ठीक है। और ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन होती है ना, उसकी ज़्यादा अफिनिटी होती है ऑक्सीजन के साथ बाइंड करने की, ठीक है। एक दफ़ा रीड करना है। ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ द ब्लड, इसे भी बस एक दफ़ा रीड ही करना है। इस टेबल को बहुत ज़्यादा अगर नहीं समझ आ रही तो इसको छोड़ दें, चाहे ये जो ऊपर वाली है ना
आई थिंक ये एक एमसीक्यूज़ में आपको आएगा, एसके के अंदर आ गया या आई थिंक पहले आया हुआ है। ये जो ऑक्सीजन कंटेंट है ना, ये आई थिंक मैंने ग्रुप में भी आपको सेंड किया था, ये इन्होंने क्वेश्चन में इसका सॉल्व करने के लिए दी हुई थी इक्वेशन। एसके 1 to 17 में ही आया हुआ था आई थिंक ये, ठीक है। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन कर्व भी आपको पता, आपने वैसे शॉर्ट फॉर्म माइंड में बना लेनी कि राइट साइड पे क्या होगा, लेफ्ट साइड पे क्या होगा, ठीक है, आपको याद हो गया होगा अब तक। आगे पेज नंबर 688 पे, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि हाई आल्टीट्यूड के ऊपर जाके क्या होगा, एक्सरसाइज में क्या होगा और मेथिमोग्लोबिनीमिया में क्या हो जाएगा, ठीक है। इससे भी बस एक दफ़ा रीड ही करना है ये, लेकिन ये दो इंपॉर्टेंट है, आल्टीट्यूड और एक्सरसाइज वाले, ठीक है। सायानाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड वाला, ये एक दफ़ा आपने रीड इससे हाईलाइट कर लेनी चीज़ें कि क्या क्या करना है, ठीक है। कि जैसे कर्व नॉर्मल वाला एमसीक्यूज़ आता है और ट्रीटमेंट वाला एमसीक्यूज़ आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक मतलब ठीक है आपको, कोई मतलब समझ आ गई जो मैंने बताया? चलिए ठीक है। और कोई क्वेश्चन इसमें? पैथोलॉजी इसकी इजी है, पैथोलॉजी से ऐसे जितना नहीं आता। फिजियोलॉजी इसकी थोड़ी सी ट्रिकी है, वो आपने अच्छे से कर लेनी है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? चलो ठीक है, क्लास एंड करें यहाँ पे। अच्छा, इसकी जो फार्मा है ना, ये एक दफ़ा आपने कर लेनी है। फिर भी जो पल्मोनरी हाइपरटेंसिव ड्रग्स है ना, इसमें एमसीक्यूज बहुत आते हैं कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन कौन कर रहा था, सिल्डेनाफिल, ठीक है। और इस तरह के मेन एमसीक्यूज यहाँ से भी आते हैं फार्मा, ठीक है। चलें ठीक है, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। ग्रुप में सेंड कर दें जो एमसीक्यूज अभी हमारे इशू आ रहा था ना।